साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एकेडमिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की हुई शुरुआत। दक्षिण एशियाई देशों के युवाओं के लिए सीमा पार जाकर ज्ञान बढ़ाने के सपने को साकार करने के लिए राजधानी दिल्ली में आज सार्क देशों द्वारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई। इसी क्रम में सार्क देशों के युवाओं का ज्ञान अर्जन करने के लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार किया है। इसके लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने मीडिया के सामने शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत की है। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा में नए मानक स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। नवीनतम शैक्षणिक कोर्स शुरू करने के साथ साथ हमारा उद्देश्य छात्रों को एक विकसित दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और शोध क्षमताओं से लैस करना है। Some of you would recall I addressed you last year from an outside building, and I invited you to see the campus, but the way life is in Delhi, nobody probably found time to visit the campus. Only very few could make it, maybe 15-20 people I saw during the year for the campus. Then we thought this year let's sort of persuade you to come physically to the campus of the university to have a feel of it, because virtual tour has its own meaning, but physical tour of the campus has its own meaning. So I wholeheartedly welcome you on behalf of everyone in the SLU family to this great campus. It's a pollution-free campus, very vast campus, very nicely built at a very heavy cost by the government of India to make sure that we set up a role model university not only for Indian students but for the students from all SAARC countries. Many of the details have been given to you by my colleagues, and that's how I work. I work much less and my colleagues do so more work that they tell you everything which has to be told. I will only highlight a few salient features which we have tried to incorporate during the year for this year admission. Last year was practically our first year on the campus, and we could increase the number of students from 600 to something like 967. Pranav Mohuri, I'm the BP in charge of international collaborations, as well as I'm chairing the Department of Computer Science. I happen to be from Bangladesh. I hope friends from Prayash will be interested to know about this is South Asian University. So it is a wonderful place, as I have seen. I happen to be from Bangladesh. I am serving here since 2010. I have seen the progress and evolution of the university from the very beginning. I could see some students from India to top this some course, some other students from Nepal to top in some other course, and so on. So in that sense, we could see the realization or experience of South Asianness in this campus. So it has been a wonderful experience. It is very nice to see all of you here in this campus. So I am just very quickly taking you for a snapshot of the campus, how it has been planned. So if you please see the slide. So this is the wonderful campus that has been planned by our initial authorities. It is placed, as you know, in the most scenic area of the South Delhi. Then next, please. These are all the faculty buildings, and on the back side are the hostel buildings, and on the right side is the playing ground and these housings. This is the whole campus, the bird side view. Please have a look. This is where we are going to welcome the students to have a fruitful stay of 4 or 5 years or 2 years in their respective programs to get the world-class quality education. Next, please. Yeah. So these are all the housing buildings. Again, wonderfully planned, and all the buildings are somehow made to have the solar panels on the top so that the campus will be a green campus all along.
सर साउथ एशिया जो एक सेशन है, इस बारे में क्या कहेंगे सर? साउथ एशियन साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या लॉन्चिंग हुई है और क्या क्या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बहुत से नए कोर्स शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, जिसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट डायमेंशंस में, एआई, आईओटी, डेटा साइंस, इसमें कोर्सेज हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्सेज हैं। एक ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जॉब को छोड़ के आना, वो भी पढ़ सके। और सार्क देशों में जिन बच्चों को कभी वीज़ा की प्रॉब्लम आती है या मीन्स नहीं है, वो भी डिग्री ले सके इस यूनिवर्सिटी में। अगर सर देखा जिस जाए मकसद से बनाया गया था यूनिवर्सिटी, उससे थोड़ा सा हटके हो रहा है, तो कैसे कहते हैं? नहीं, हटके नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी बना ही इसलिए था कि सार्क देशों की जो कॉमन रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सके। वो तो सभी को रहेगा, शामिल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे वही हो रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है। इस पे जो स्टूडेंट्स के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और किस तरह है? स्टूडेंट के एडमिशन का एक तो हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके लिए भारत में बहुत से सेंटर्स बनते हैं। दूसरे देशों में हम सेंटर बनाते हैं, लेकिन बहुत से सेंटर तो दूसरे देशों में नहीं बनाए जा सकते थे। इसलिए इस साल हमने फैसला किया कि दूसरे देशों के बच्चे अपने घर से ही प्रॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं, जो आज का सॉफ्टवेयर द्वारा हो सकता है। और तीसरा मैंने ये कहा कि यदि किसी और देश का भी कोई नेशनल एंट्रेंस टेस्ट हो, उसको भी हम मान्यता दे देंगे। जैसे भारत में हम बीटेक के बच्चों के एडमिशन के लिए साउ का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और जेईई भी लेते हैं, इसी तरह से किसी और देश का भी कोई स्टैंडर्ड टेस्ट हो तो उसको भी हम मान लें, ताकि ज्यादा बच्चे आ सकें। फॉरनर जो नेपाल से या और कई कंट्री से आते हैं, उनके लिए क्या एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा बीटेक के लिए? उनको बीटेक के लिए या तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट पास करें, या यदि वो भारत में हो, भारत जेईई भी अलाउड है कुछ फॉरेन बच्चों को, जेईई पास करें तो भी ठीक है, या वो उनके देश का कोई एंट्रेंस टेस्ट होता हो तो उसको पास करें तो भी ठीक है। सार्क देशों के साथ साथ भारत के छात्रों के पास इन अवसरों तक पहुंचने के लिए कई विकल्प खुले हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि एसएयू विस्तार के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। नई दिल्ली के मैदानगढ़ी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अत्याधुनिक 100 एकड़ का स्थायी परिसर है, इको फ्रेंडली वातावरण में बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।